everyone and welcome to my YouTube channel Learn English with Himmi. And today I'm really happy because I got a good support from the people who watched my first video. Thank you so much for subscribing to my channel. So our today's topic for the video is tenses. Why tenses are so important in English? English में tenses इतने ज़रूरी क्यों होते हैं? क्योंकि अगर हमें tenses नहीं पता होंगे we will not be able to frame sentences. हम किसी को ये बता ही नहीं पाएंगे कि हमने कल क्या किया था, हम आज क्या करेंगे, आप अभी क्या कर रहे हो, आप कल क्या करोगे, आप किसी को नहीं बता पाओगे. And that is a problem, a big problem. So in order to frame correct sentences, you need to know tenses. Now we know that why tenses are so important in English. हमें ये पता चल चुका है कि tenses इतने important क्यों हैं. So it's time for us to learn them. तो मैं tenses की वीडियोस को पार्ट्स में बनाऊंगी. हर वीडियो में एक टेंस को लूँगी और उसको एक्सप्लेन करूँगी so that our video won't be too much long and boring. So आज इस वीडियो में we're only going to talk about present tense. So let's get started. So the first one is present simple. It is used to describe any action that happens on a daily basis. प्रेजेंट सिंपल हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी ऐसी एक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हो जो हम डेली बेसिस पे करते हैं या फिर कोई फैक्ट हो किसी चीज़ के बारे में. सो व्हाट इज़ इट्स ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर. इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. नाउ व्हाट आर वर्ब्स? वर्ब्स क्या होते हैं? द वर्ड विच डिस्क्राइब एनी एक्शन लाइक वॉक, सिंग, डांस, सिट. These are verbs. ये सारे verbs कहलाते हैं. और subject क्या होते हैं? I, we, you, they, he, she, it. These all are subject. Now for example, I walk to school every day. मैं हर दिन चलकर स्कूल जाती हूँ. She walks to school every day. वो हर दिन स्कूल चलकर जाती है. Now one thing we should keep into our mind, एक चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना है, I, we, you, they के साथ जब भी verb लगेगा वो singular form में लगेगा. Like I said, I walk to school. But he, she और it के साथ जब भी verb लगेगा वो plural में लगेगा. Like s और es हमें add करना पड़ेगा. Like I said, she walks to school every day. Few more examples. I work in London. मैं लंदन में काम करती हूँ. She works in London. वो लंदन में काम करती है. I play football every day. मैं हर दिन फुटबॉल खेलती हूँ. He plays football every day. वो हर दिन फुटबॉल खेलता है. Emma watches cartoon every day. Emma हर दिन कार्टून देखती है. And Johnny goes to gym every day. Johnny हर दिन जिम जाता है. These are the examples for present simple tense. Now we are going to talk about present perfect. Now what is it? It is used to describe any action that is finished in the recent past. Recently अगर कोई चीज़ हुई होती है हम उसे बताने के लिए present perfect को यूज़ करते हैं. Now what is its structure? इसका structure क्या होता है? Subject plus have, has plus verb third form. Verb का third form मतलब walk का walked, finish का finished. This is verb's third form. Now with the subjects, with I, we, you, they, we use have. And with he, she, it, we use has. I, we, you, they के साथ हम have को use करते हैं और he, she, it के साथ we use has. हम has को use करते हैं. For example, she has made a beautiful dress. उसने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस बनाई है. He has eaten the food. उसने खाना खा लिया है या वो खाना खा चुका है. I have finished my work. मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है. You have finished your work. तुमने अपना काम ख़त्म कर लिया है. These are all the examples for present perfect tense. ये सारे present perfect tense के examples हो गए. ठीक है. And these are super easy. And to be honest, the whole English is super easy. If you do practice on a daily basis, अगर आप रोज़ English को थोड़ा time देंगे, उसे सीखने की कोशिश करेंगे, so in less time you'll get fluent in English. Now we are going to talk about present continuous. It is used to describe any action that is happening at the moment.
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब कर रहे हो जो अभी फ़िलहाल हो रहा हो, ऑन प्रोग्रेस हो। व्हाट इज़ इट्स ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर? इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस एम इज़ आर प्लस वर्ब प्लस ing। सो आई के साथ हम एम को यूज़ करेंगे। वी यूज़ एम विद आई सब्जेक्ट। ओके, ही शी इट के साथ हम इज़ यूज़ करेंगे। विल यूज़ इज़ विद ही शी इट सब्जेक्ट। यू वी दे के साथ हम आर को यूज़ करेंगे। ऑलराइट, व्हाट आर द एग्जाम्पल फॉर दिस? ही इज़ वेयरिंग अ रेड जैकेट। उसने एक रेड कलर की जैकेट पहनी हुई है। द चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। बच्चे स्कूल जा रहे हैं। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। बाहर बारिश हो रही है। सो सारे एग्जाम्पल्स जो मैंने दिए उसमें प्रोग्रेस ऑन गोइंग है। सो दीज आर द एग्जाम्पल फॉर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सो नाउ आवर लास्ट टेंस फॉर द डे इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। It is used to describe any action that started in the past but still going on. Present perfect continuous हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई ऐसा एक्शन आपको एक्सप्लेन कर रहे हो जिसे हमने पास्ट में स्टार्ट किया था पर वो अभी तक चलते आ रहा है। So what is its grammatical structure? Grammatical structure क्या है? Subject plus have been or has been plus verb plus ing। सो आई वी यू दे के साथ हम हैव यूज़ करते हैं। ही शी इट के साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। हम सुबह से फ़ुटबॉल खेल रहे हैं। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। मैं 3 घंटे से पढ़ाई कर रही हूँ। दे हैव बीन लिविंग इन द सेम हाउस सिंस 2000। वो 2000 से सेम ही घर में रह रहे हैं। वी हैव बीन कुकिंग डिनर फॉर 2 आवर्स। हम 2 घंटे से डिनर बना रहे हैं। सो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आप ईजीएस्ट वे में इंग्लिश सीखना चाहते हैं so please subscribe to my channel, and if you already did subscribe to my channel, thank you so much, and see you guys in the next video. Until then, bye bye.